اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار اور یہ میری ایک فیمیل سبسکرائبر ہیں۔ 8 اپریل 1951 کو یہ پیدا ہوئی ہیں کراچی میں۔ تو آج ہم ان کا پام دیکھیں گے کہ ان کے پام سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور پھر ان کا نوش و برچارڈ بھی ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ان کے انگوٹھے کی بات کروں۔ انگوٹھا ان کا اچھی لینتھ میں ہے۔ فرسٹ فیلنگ جو ہے، انگوٹھے کا جو فرسٹ فلور ہوتا ہے، یہ انسان کی ول پاور کا بتاتا ہے، تو ول پاور بھی ماشاءاللہ ان کی ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو فیلنگ ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے ول پلاننگ کا، تو پلاننگ سوجھ بوجھ بھی ماشاءاللہ ان کی زبردست ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ان کی آنکھ نہیں بن رہی، آنکھ ڈسٹرب ہے۔ جب یہاں پہ سنگل لائن ہوتی ہے، آنکھ نہیں بنتی، تو یہ چیز ہماری زندگی میں سٹرگل کو بڑھا دیتی ہے، مشکلات کو بڑھا دیتی ہے۔ تو بالکل ان کو زندگی میں بہت سٹرگل کرنی پڑے گی، کوئی بھی چیز ان کو آسانی کے ساتھ نہیں ملے گی۔ زندگی میں یہ کچھ غلط ڈیسیژن بھی لیں گی، غلط فیصلے بھی کریں گی، اور زندگی میں بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ پرابلم ان کو دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ جب آپ کے انگوٹھے پہ یہ سنگل لائن ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو زندگی میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے لیے زندگی آسان نہیں ہوتی۔ اب سب سے پہلے ہم ان کا لیفٹ ہینڈ دیکھ لیتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس کے بعد پھر ان کا ہم رائٹ ہینڈ دیکھیں گے۔ تو انگوٹھا ماشاءاللہ ان کا جو ہے وہ لمبا ہے، یہاں تک آ رہا ہے۔ انگوٹھا جب آپ کا لمبا ہوتا ہے تو ایسے لوگ اصول پرست ہوتے ہیں، اصولوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں، اور بہت محنتی ہوتے ہیں، اور ایک لیڈرشپ کوالٹیز بھی ایسے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کا وینس ماؤنٹ دیکھیں گے تو وینس ماؤنٹ ابھرا ہوا ہے۔ تقریباً 3-4 بچے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرمائے گا، بیٹے بھی بیٹیاں بھی۔ اور جہاں تک زندگی کی لائن ہے، زندگی ان کی لمبی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا۔ یہ ہے جی ان کی لائف لائن۔ لائف لائن دیکھ لیں آپ، بہت زبردست ہے۔ نیچے آ کے 2 شاخہ ہو رہی ہے، تو یہ بیرون ملک بھی ضرور جائیں گی، اور فورن سیٹلمنٹ بھی ان کی ہو سکتی ہے۔ اور وینس ماؤنٹ ان کا ابھرا ہوا ہے، تو اچھا کھائیں گی، اچھا پہنیں گی۔ مریخ مثبت بھی ان کا کافی ابھرا ہوا ہے، تو غصے کی بھی یہ تھوڑی تیز ہیں۔ اور مریخ جب ابھرا ہوا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے اندر ایک آگے بڑھنے کا جذبہ، ایسے لوگ ہمت نہیں ہارتے، بڑے دلیر ہوتے ہیں، اور بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ یہ زندگی کی جو پرابلم آتی ہے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جوپیٹر ماؤنٹ ان کا اچھی لینتھ ہے، ٹھیک ہے، نہ بہت زیادہ دبا ہوا ہے نہ ابھرا ہوا ہے، لیکن شروع میں تھوڑا سا دبا ہوا ہے۔ تو شروع کی زندگی میں مشکلات یہ دیکھیں گے، یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ارلی ایج میں ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات، کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور آئیں گی۔ ان کے بچپن سے لے کے 20-25 سال کی عمر تک یہ والا ٹائم ان کا مشکل ہوگا۔ جوپیٹر ماؤنٹ پر یہ کراس کا سائن انسان کو دولت دیتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے، اس کو بڑا اچھا مانا گیا جوپیٹر ماؤنٹ پہ۔ ویسے کراس جو ہے اس کو اچھا نہیں مانا گیا، لیکن اگر یہاں پہ کراس کو اچھا مانا گیا، اس کے علاوہ یہاں پہ کراس کو اچھا مانا گیا۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو زندگی کی لائن لمبی ہے، اور دماغ کی لکیر زندگی کی لائن کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو جب زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر جڑی ہوئی ہو تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ٹینشن آ جائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے۔ باقی دل کی لائن اگر آپ دیکھیں گے تو دل کی لائن میں کچھ کٹ بھی ہیں، وہ کچھ ایک لائن یہاں سے نیچے کی طرف بھی گری ہے، تو ایک بہت بڑا دھوکہ ان کے ساتھ ضرور ہوگا۔ وہ میرے خیال میں تو 30-35 سال کی عمر میں یہ دھوکہ ان کے ساتھ ہوگا۔ 30 سے 40 کے درمیان ایک بہت بڑا دلی صدمہ ان کو ملے گا۔ کوئی اپنا ہی ان کو چیٹ کرے گا، کسی اپنے سے ہی ان کو دکھ ملے گا، اور پھر 50 پہ بھی جا کے نا، 55-60 پہ بھی جا کے ان کو ایک دھوکہ ملے گا۔ کچھ نہ کچھ ان کو بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، ریپوٹیشن بھی خراب ہوگی، اور جھوٹے کچھ الزام بھی ان پر لگ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو قسمت کی لائن بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہے، تھوڑی ویک ہے۔
तो जब किस्मत की लाइन होती तो है लेकिन थोड़ी कमज़ोर होती है, तो इसका मतलब ये कि तकरीबन 27-28 साल की उम्र के बाद जाके इनकी किस्मत में बेहतरी आई है और यहाँ से फिर इनकी ज़िंदगी ने इनके कैरियर का स्टार्ट हुआ है 25-26 साल की उम्र में जाके। लेकिन किस्मत की लाइन थोड़ी वीक है, तो 25-26-27 साल की उम्र में यहाँ से प्रॉब्लम भी साथ साथ चले और फिर 30-35 पे भी इनका एक नुकसान हुआ है, 27-28 पे भी नुकसान हुआ है और एक बहुत बड़ा धोखा इनको 40 से 45 साल की उम्र में भी मिलेगा। और उसके बाद अगर आप किस्मत की लकीर देखें तो 50 से लेके 52, 53 बल्कि 47 से लेके 60 तक ये वाला टाइम भी इनका मुश्किल ही था। इनके 47 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक ये वाला टाइम भी इनका मुश्किल था। यहाँ पे अगरचे यहाँ पे सन लाइन बनी हुई है, यहाँ पर भी ये इस तरीके से वी का साइन बन रहा है, लेकिन एक लाइन इसको यूं काट भी रही है और यहाँ सैटर्न पर भी एक क्रॉस का साइन बन रहा है, तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। अगर सन पे भी क्रॉस का एक साइन बने, सैटर्न पे भी क्रॉस का साइन बने, तो इंसान को 50 से 60 साल की उम्र में भी कोई ना कोई रुपए पैसे का नुकसान ज़रूर होता है या कोई धोखा मिलता है या कुछ ना कुछ सदमा इंसान को ज़रूर बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, रुपए पैसे का नुकसान होता है। बहरहाल कुछ ना कुछ मुश्किलात ज़रूर आती हैं ज़िंदगी में। अब इनका थोड़ा-सा राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड अगर आप देखेंगे, तो ये इनका जुपिटर माउंट है। जुपिटर माउंट पे जब इस तरीके से फिश का साइन बने, तो ये आपको दौलत देता है, रुपया पैसा देता है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा देगा, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी। लेकिन अगर आप इनकी ज़िंदगी की लाइन शुरू में देखें, तो यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन बहुत डिस्टर्ब है। इनके बचपन से लेके 24-25 साल की उम्र तक इन्होंने बड़ा मुश्किल टाइम देखा है, ठीक है। इसके अलावा गुस्सा, ये अंदरूनी मंगल जो होता है इंसान के गुस्से और ईगो का बताता है, तो बिल्कुल एक गुस्सा और ईगो भी इनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा वीनस माउंट इनका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, इस पर खड़ी लाइनें भी मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा, औलाद भी देगा। मैंने बताया कि 3 से 4 बच्चे इनके हो सकते हैं और अगर हम ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है और यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन भी है। तो गार्डियन एंजल लाइन जो होती है ये ब्लेसिंग की लाइन होती है, ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़्ल व करम होता है उन लोगों पे। तो जब भी इनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा होगा तो ये उस ख़तरे से बच जाएँगी, बीमारी आएगी या कोई हादसा होने वाला होगा, तो अल्लाह ताला इनकी जान की हिफाज़त फ़रमाएगा। और जब ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ उठे तो ये किस्मत की लकीर भी हम इसको कह लें या कामयाबी की लकीर कह लें। तो ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपना कैरियर खुद बनाएँगी, बहुत स्ट्रगल करेंगी और उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। यहाँ पर भी ये बता रहा है कि 25, 26, 27 साल की उम्र तक ये बहुत ज़्यादा दुःख, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखेंगी और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपनी किस्मत को बनाने की कोशिश की है। अभी किस्मत 24-25 साल की उम्र में ये अपने पाँव पर खड़ी हुई हैं, तो 2-3 साल के बाद इन पर गमों के पहाड़ टूटे हैं। कोई बहुत बड़ा धोखा इनके साथ हुआ है, कोई रुपए पैसे का नुकसान हुआ है या यहाँ पे ना इनकी ज़िंदगी सख्त मुश्किलात का शिकार हुई है 27 से लेके 30-35 साल की उम्र तक। ये इनका टफ टाइम था और आम तौर पर यहीं लड़की की शादी होती है। तो मेरे ख्याल में तो जो भी इनकी पहली मंगनी थी या जो भी इनकी पहली शादी थी, उसमें इनको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिला। चाहे किसी वजह से भी शादी में मसले आए हैं, ज़रूर मसले आए होंगे। और क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना, जब लड़की के हाथ में हमें किस्मत की लाइन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब मिलती है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्रॉस है, दवा सा बना हुआ है, तो यहाँ पे यकीनन ये इन्होंने बहुत मुश्किल टाइम देखा है। 26-27 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र तक, 26 से लेके 35 तक ये काफ़ी मुश्किल टाइम था। उसके बाद फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता उस प्रॉब्लम से निकली हैं। 42 टू 43 पे फिर इनका एक बड़ा नुकसान हुआ है, 45 के करीब-करीब और उसके बाद फिर ये थोड़ा-सा आगे इनकी 40 से 50 वाला टाइम इनका मुश्किल ही लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी दिल की लाइन ने किस्मत की लाइन को काटा है, यहाँ पे दिमाग की लाइन ने किस्मत की लाइन को काटा है, तो 2-3 बड़े धोखे इनके साथ इनका दिल भी बुरे तरीके से टूटेगा 40 से 50 साल की उम्र में और इनको अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा दुख मिलेंगे। यानी कि जिस रिश्ते से ये मोहब्बत करेंगी, उसी रिश्ते से इनको दुख ज़रूर मिलेगा, तकलीफ़ें ज़रूर मिलेंगी। यहाँ पे भी इस तरीके से क्रॉस का साइन बन रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस का साइन बन रहा है। तो ओल्ड एज में भी 50 से 55 के दरमियान, 55 के करीब, 55 से 60 के करीब
यहाँ पर भी इनकी रेपुटेशन ख़राब होगी या रुपए पैसे का नुकसान होगा। तो अगर हम मजमूई तौर पे देखें तो ज़िंदगी इनकी दुखों और तकलीफ़ों में ही गुजरी है, सुकून कोई नहीं मिला। लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के यहाँ पे 60 के बाद आगे अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में करम करेगा, आगे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, इनकी सेहत भी बेहतर होगी और आगे इंशाअल्लाह ताला ये यहाँ पे भी आप देख लें ज़िंदगी की लाइन, यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी सेहत ख़राब होगी, थोड़ी-थोड़ी सेहत ख़राब होगी, लेकिन ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला 80-90 तक तो ये आगे तक इनकी इनकी एज जाएगी। यहाँ पे आप देखें तो दिमाग की लाइन यूँ जाते-जाते यहाँ पे एक लाइन है, इसको ऐसे काट दी है। तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी इनको प्रॉब्लम पेश आएँगे और इसके अलावा एक बहुत बड़ा ज़हनी सदमा 35 से 40 साल की उम्र में भी मिलेगा इनको और 27 से लेके 35 के दरमियान भी मिलेगा। यानी कि एक सदमा इनको 27 से 35 के दरमियान मिलेगा और दूसरा सदमा इनको 35 से 40 साल की उम्र में और तीसरा सदमा इनको 40 से 45 साल की उम्र में मिलेगा। तो 3-4 बड़े सदमे इनको ज़रूर मिलेंगे, जिसमें इंसान का रुपए पैसे का भी नुकसान होता है, इंसान की शादी भी डिस्टर्ब होती है, ज़िंदगी में सुकून को नहीं होता, डिप्रेशन होता है, दिल में सुकून को नहीं होता, तो ये चीज़ें इनके साथ ज़रूर होंगी। लेकिन उम्मीद है कि ओल्ड एज इनकी अच्छी होगी। अब अगर हम इनकी शादी की लाइन्स देखें, तो शादी की लाइन बज़ाहिर देखने वाला तो यही कहेगा बड़ी ज़बरदस्त शादी की लाइन है, लेकिन देखिए तो शादी की लाइन थोड़ी-सी खोखली है। तो इसका मतलब ये है कि शादी में इनको प्रॉब्लम का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे भी शादी की लाइन थोड़ी-सी चौड़ी-सी लग रही है पीछे से और यहाँ पे इतनी पूरी पावर में नहीं है। तो बिल्कुल 100% इनको शादी में मसाइल का सामना करना पड़ा और इन्होंने ज़िंदगी में बहुत टफ टाइम और मुश्किल टाइम देखा है इन्होंने। अब अगर हम इनका लोशो बर्थ चार्ट देख लें, तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो लोशो बर्थ चार्ट आपको अच्छी तरह मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये लोशो बर्थ चार्ट होता है, जिसमें कोनों में 2, 4, 6, 8 लिख देते हैं, 5 को सेंटर में रखते हैं और बाकी 7, 9, 3, 8 और 1। ये हर तरफ से आंसर 15 आएगा। अब इधर से जमा करके देख लें, 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 इधर से जमा करके देख लें। जहाँ से मर्जी जमा करें ना, आंसर आपको 15 ही मिलेगा। ये इतना बेहतरीन ये ना कह लें कि मैजिक बॉक्स है, ठीक है? तो इसी मैजिक बॉक्स से ही हम आपका जो है ना वो आपकी जो किस्मत है, तकदीर है, ये मैजिक बॉक्स ही बताता है, जिसको लोशो बर्थ चार्ट कहते हैं चाइनीज़ में। तो देखिए ये बनता कैसे है, इसका तरीकाकार ये है कि आपने जिस तारीख को इंसान पैदा हुआ है, अगर 1 से लेके 9 तक पैदा हुआ है, तो उसका ड्राइवर 9 ही होगा। ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर वो डिजिट होता है 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। आप किसी भी तारीख को पैदा हो सकते हैं, महीने की। तो 1 से लेके 9 तक अगर आप किसी तारीख में पैदा हुए हैं, तो वही आपका ड्राइवर होगा। 1 को पैदा हुए तो 1, 2 को पैदा हुए 2। लेकिन अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, 1 और 0 को जमा करके आपका ड्राइवर 1 होगा। अगर आप 12 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपने इसको सिंगल डिजिट में लेके आना है, यानी कि 1 और 2 जमा 3 आपने कर लेना। यानी कि जो भी 2 डबल डेट होगी ना, डबल डेट को दोनों डिजिट को जमा कर देना और उसको सिंगल डिजिट में ले आना है, ठीक है जी। तो ये आपका ये 8 तारीख को पैदा हुई है, तो ड्राइवर इनका 8 आ गया। अब कंडक्टर हमने निकालना है। कंडक्टर निकालने का तरीकाकार ये होता है कि ये सारी डेट ऑफ बर्थ के जितने भी डिजिट होते हैं, अगर हम इनको जमा करें तो हमें कंडक्टर हासिल हो जाता है। तो कंडक्टर को जमा किया तो यह हमें हासिल हुआ 28 और 28 को मजीद जमा करेंगे तो ये बना 10, 10 को मजीद जमा करेंगे तो ये आ गया 1। ड्राइवर 1 होगा। तीसरा डिजिट हमें चाहिए होता है कू एंजल। कू एंजल हम ये जो ईयर के डिजिट होते हैं ना, अगर गर्ल हो तो हम +4 ऐड करते हैं ईयर के डिजिट में, अगर बॉय हो तो -11 करते हैं। तो चूंकि ये फीमेल है तो हमने ईयर के डिजिट में +4 ऐड किया तो हमें ये कू एंजल इनका 2 हासिल हो गया, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, मैं ईयर के अंदर भी जो ये होते हैं हिडन नंबर, ये भी आप हासिल कर सकते हैं। देखिए जिस ईयर को आप पैदा हुए ना, उसके जो लास्ट वाले जो 2 डिजिट है, आप इनको जमा करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। और अगर आप ईयर के टोटल डिजिट को जमा करेंगे तो ये 16 बनेगा और आपको 7 मिल जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 6 और 7 नंबर नहीं है, तो 6 और 7 नंबर भी आपको ईयर के डिजिट में से मिल सकते हैं, अगर आप अपनी ईयर को जमा करेंगे तो।
اب جناب کوہ اینجل سے اور ڈرائیور اور کنیکٹر کو ملا کے ہمیں یہ بکس حاصل ہوئے، ٹھیک ہے. تو اس میں صرف ہمیں 3 نمبر مس ہوئے، 6 نمبر مس ہوا اور 7 نمبر مس ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ان کی ڈیٹ آف برتھ کے جو ایکچوئل نمبر ہیں، ان کے اگر ہم کنیکٹر کو بھی چھوڑ دیں، ڈرائیور کو چھوڑ دیں، کوہ اینجل کو چھوڑ دیں، تو جو خالص نمبر ہے نا وہ ہمیں یہ حاصل ہوتے ہیں. تو میں اب کیا کرتا ہوں، میں 2 چارٹ بنا لیتا ہوں جس میں ایک باکس میں رکھتا ہوں خالص نمبر جو ہمیں ڈیٹ آف برتھ سے ملتے ہیں، اور دوسرے خانے میں میں وہ نمبر بھی ایڈ کر لیتا ہوں جیسے ہمیں ڈرائیور مل گیا، کنڈکٹر مل گیا اور کوہ اینجل مل گیا، وہ میں ان کے اس گریڈ میں ایڈ کر لیتا ہوں. اور یہ جو گریڈ ہے اس میں جو خالص ڈیٹ آف برتھ کے ڈیجٹ ہے وہ میں نے ایڈ کر لیے. تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں 49258111 یہ ملا، اور یہاں پہ 495811 2 ہمیں کوئی نہیں ملا. لیکن کیونکہ نمبر 2 ہمیں کوہ اینجل سے مل گیا تھا، لیکن جو ہم نے خالص ڈیٹ آف برتھ سے ڈیجٹ لیے تھے اس میں 2 نمبر نہیں ہے. تو اب ہم اس گریڈ کو پڑھتے کیسے ہیں اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ 1 نمبر 2 دفعہ ہے. تو 1 نمبر جب 2 دفعہ آتا ہے تو ایسے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر ایک جرت بھی ہوتی ہے، ایسے لوگ بڑے دلیر ہوتے ہیں، اپنی محنت اور قابلیت سے زندگی میں ترقی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیم فیم دیتا ہے. اور 1 نمبر ہوتا ہے سورج کا، یعنی کہ سورج جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس کائنات میں راجہ ہے، کنگ ہے. تو یہ بھی آپ کے اندر آپ کو کنگ، ملکہ، کوئین والی خصوصیات آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کوئین، آپ کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. اور اب اگر دیکھیں یہاں پہ نمبر 2 ہے، نمبر 2 ہوتا ہے مون کا. تو یہ روحانیت، اسپرچویلٹی، انسان کے اندر جتنا بھی محبت کا جذبہ ہوتا ہے نا، انسان کے اندر جو مامتا عورت کے اندر پائی جاتی ہے، یہ نمبر 2 کی وجہ سے ہے. تو انسان کا جو دل ہے اس کو بھی نمبر 2 سے دیکھتے ہیں، محبت پیار کے جتنے بھی جذبات ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نمبر 2 سے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے ہارٹ کو ہم دیکھتے ہیں. تو نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، تو یہ بہت زیادہ لونگ ہے، کیئرنگ ہے، بہت محبت کرنے والی ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحانیت، اسپرچویلٹی بھی رکھی ہے. اب نمبر 3 ان کے پاس نہیں ہے. نمبر 3 جب پاس نہ ہو، یہ نمبر 3 ہوتا ہے جوپیٹر کا. تو جوپیٹر جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تو پھر زندگی میں بہت زیادہ آپ کو دکھ، تکلیفیں، ٹینشنیں دیکھنا پڑ جاتی ہیں، کیونکہ جوپیٹر آپ کو زندگی میں آسانیاں دیتا ہے، آپ کا کیریئر بنتا ہے، آپ کے پاس نالج ہوتا ہے، آپ کے پاس زبردست ایجوکیشن ہوتی ہے، آپ کی زندگی بڑی بہترین ہوتی ہے، آپ کی میری لائف بڑی زبردست ہوتی ہے اگر نمبر 3 آپ کے پاس ہو. لیکن یہی نمبر 3 جب آپ کے پاس مس ہو جاتا ہے تو آپ زندگی جس طریقے سے اچھے طریقے سے سوجھ بوجھ سے گزارنی ہوتی ہے اس طریقے سے گزار نہیں پاتے، غلط لوگوں پر اعتبار کرتے ہیں، زندگی میں غلط فیصلے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بڑا دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، اور بعد میں آپ پچھتاتے بھی ہیں. لوگ آپ کو اپنے مطلب کے لیے یوز کرتے ہیں، آپ کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی. ایک عمر گزرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میرا کون اپنا تھا، کون میرا اپنا نہیں تھا، کیونکہ سارے لوگ مطلب بھی آپ کو ملتے ہیں، آپ سے اپنا مطلب نکالتے ہیں. اور اسی طرح 4 نمبر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے. تو 4 نمبر اچھی میموری کا ہوتا ہے، راہو کا نمبر ہے، تو یہ انسان کو دولت بھی دیتا ہے، روپیہ پیسہ بھی دیتا ہے. تو یہ اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 نمبر دیا ہوا ہے. تو 4 کی وجہ سے دولت، روپیہ پیسہ کبھی ان کے ہاتھ سے خالی نہیں ہوگا، روپیہ پیسہ ان کے پاس ضرور آئے گا. 5 نمبر ہوتا ہے اچھی گفتگو، اچھا نالج، ایک سٹیبلٹی، اپنا گھر کا ہونا. تو بالکل یہ اپنا گھر بھی بنائیں گی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی سوجھ بوجھ بھی دی ہے، اور زندگی میں یہ ترقی بھی کریں گی. 6 نمبر ان کے پاس نہیں ہے. تو 6 نمبر جب پاس نہیں ہوتا تو انسان کو رشتوں کی محبت نہیں ملتی، انسان کو شادی شدہ زندگی میں صحیح محبت نہیں ملتی، سکھ نہیں ملتا شادی کا. شادی میں بھی مسائل رہتے ہیں، اپنے سگے رشتوں سے بعض دفعہ خونی رشتوں سے وفا نہیں ملتی، کوئی 1-2 رشتوں کو چھوڑ کے زیادہ تر رشتے آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، آپ سے اپنا مطلب نکالتے ہیں، زندگی میں آپ کو سیلفش لوگوں سے پالا پڑتا ہے. تو 7 نمبر بھی ان کے پاس مس ہے. تو روحانیت، اسپرچویلٹی میں بھی تھوڑی سی کمی آتی ہے، انسان دنیا داری میں پھنس جاتا ہے، اور جس قدر غصہ بندے کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ڈپریشن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، انسان غلط فیصلے کرنا شروع کر جاتا ہے. کبھی کبھی انسان تھوڑا سا غلط ڈیسیژن لیتا ہے، غلط لوگوں پر اعتبار کرتا ہے. تو 7 جو ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک اسپرچول نمبر ہے. یہ آپ کے اندر ریسرچ پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر ایک سمجھداری لے کے آتا ہے، آپ کے اندر ایک روحانیت، اسپرچویلٹی لے کے آتا ہے. لیکن یہی 7 نمبر جب آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں مس ہو جاتا ہے
तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी कमी आने लगती है, कहीं ना कहीं आप गलत फैसले करना शुरू कर देते हैं, मायूसी, डिप्रेशन, गुस्सा, नेगेटिविटी आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। 8 नंबर जो होता है ये होता है सैटर्न का। तो ये जस्टिस का नंबर है, इंसाफ का नंबर है। हमने ज़िंदगी को कैसे अच्छा गुजारना है, कैसे बुरा गुजारना है, इस चीज़ का फैसला करने की ये आपकी सूझबूझ देता है आपको। 8 नंबर जब आपके पास होता है तो आप अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और फिर आप अपनी मेहनत और काबिलियत से ही ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन आपको दुख, तकलीफ़ें, स्ट्रगल बहुत उठाना पड़ती हैं, क्योंकि आपके पास 3 नंबर नहीं है, आपके पास 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो 2 भी नहीं है। तो नंबर 2 जब नहीं होता तो इंसान को शुरू में अपने रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती, माँ की मोहब्बत नहीं मिलती और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी इन चीज़ों की भी कमी आना शुरू हो जाती है। इंसान अपने रिश्तों को ठीक तरीके से लेकर नहीं चल पाता। नंबर 2 भी मिस हो, नंबर 3 भी मिस हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में सुख मिले। आपको किसी न किसी तरीके से सताया जाता है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर आपको दुःख दे या आपके ससुराल वाले आपको दुःख दें, कहीं न कहीं आपकी शादी किसी न किसी दूसरे रिश्ते की वजह से डिस्टर्ब होती है। 9 नंबर भी इनके पास है, तो 9 नंबर एक दफ़ा आया तो हिम्मत तो इनके अंदर पाई जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान को इतने दुःख मिलते हैं, इतनी तकलीफ़ें मिलती हैं कि जब 9 नंबर एक दफ़ा होता है तो कभी-कभी इंसान अपनी हिम्मत हार भी जाता है। इनके शिकस्त खुर्दा हो जाता है ना। एक वक़्त आता है इंसान दुःख, तकलीफ़ें, टेंशनें बर्दाश्त कर कर के टूट जाता है। तो ये इनके साथ होगा कि इन्होंने भी क्योंकि इनकी ज़िंदगी में मैंने बताया हम इनका हाथ पढ़ चुके हैं, तो 25, 26, 27 साल की उम्र में पहले बचपन में भी दुःख तकलीफ़ें देखी हैं और रही सही कसर इनकी जो है वो 25, 26, 27 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में अज़ाब आना शुरू हुए हैं। फिर 35, 40 साल की उम्र तक दुःख ही दुःख देखे हैं, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें देखी हैं। रिश्तों का साथ कोई नहीं मिला, जो पार्टनर था उससे वफ़ा कोई नहीं मिली, अपने रिश्तों से वफ़ा नहीं मिली। तो बंदा हार जाता है, थक जाता है, क्योंकि इंसान शेर उस वक़्त होता है जब इंसान को अपने रिश्तों का साथ मिलता है, फिर इंसान दिलेर होता है। लेकिन अगर एक औरत हो, उसको अपने रिश्तों का बस सही तरीके से साथ ना मिले, अपना लाइफ पार्टनर उसका सही मानों में उसका अपना ना हो, उसको क्योंकि बीवी अपने शोहर की वजह से शेर होती है, लेकिन अगर उसी का साथ किसी तरीके से सही ना मिल रहा हो, तो फिर ज़िंदगी बड़ी अज़ाब बन जाती है। तो इनके साथ भी यही हुआ है, ज़िंदगी में इन्होंने दुःख, तकलीफ़ें, टेंशनें अकेले ही बर्दाश्त की हैं और मर्दों की तरह ज़िंदगी गुज़ारी है और सख्त तकलीफ़ें देखी हैं। 47 से लेके 55 तक, यानी कि 47 से लेके 55-60 साल की उम्र तक भी इन्होंने बहुत दुःख देखे हैं, तकलीफ़ें देखी हैं। यानी कि बचपन भी तकलीफ़ों में गुज़रा, जवानी भी तकलीफ़ों में गुज़री और बुढ़ापा भी, जो जहाँ इंसान को एक सुकून की ज़रूरत होती है, वो टाइम भी इनका थोड़ा-सा मुश्किल था। ये 47 की एज से लेके 60 तक ये भी इन्होंने दुःख तकलीफ़ें ही देखी हैं। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो एक स्ट्रगल, एक दुःख, एक तकलीफ़ें इनकी ज़िंदगी का हिस्सा रही हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला इनको सेहत अता फ़रमाए, इनको आगे ज़िंदगी में खुशियाँ अता फ़रमाए। तो 1951 इनकी एज, इनके ये बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इनकी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 70-75 साल इनकी एज हो सकती है मेरे एक मुतात अंदाजे के मुताबिक। क्या ख्याल है? तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी अबव 60 से अबव जितने भी लोग हैं, मैं उनकी बड़ी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अ, उनकी बहुत अच्छी रीडिंग की जाए। उनकी वीडियो भी मैंने इसलिए बनाई है कि ज़ाहिर है ओल्ड एज में इंसान का दिल करता है कि वो उसे कोई टाइम गुज़ारने का एक अच्छा मौका मिले। तो मैंने इनके हाथ पे वीडियो बनाई है, ये इनको मैंने अपनी तरफ से गिफ्ट कर रहा हूँ कि ये जब भी वीडियो देखेंगी तो इनको मज़ा आएगा और यूट्यूब पे जब भी ये बोर हो रही होंगी तो ये अपनी ज़िंदगी के बारे में इनको अच्छा लगेगा कि कोई इंसान इनकी ज़िंदगी को पढ़ रहा है, इनके दुखों को पढ़ रहा है अपने इल्म से, तो बड़ा मज़ा आता है इंसान को। तो बिल्कुल आप लोग भी इनकी दुआ करें, इनकी सेहत के लिए, इनकी ज़िंदगी में खुशियों के लिए, इनकी औलाद के लिए, इनके बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला इनको भी सेहत दे, आगे इनके बच्चों को भी सेहत और खुशियाँ अता फरमाए, आगे बच्चों के बच्चों को भी खुशियाँ दे। तो मैं तो हर इंसान के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे जी। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, वो मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें।
आपकी जन्म कुंडली बनेगी, दोषो बर्थ चार्ट बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए राब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।